Hi, Oh, Sapnija. yes. Can Hi, you hear? Sapnija. Hi. Hello everyone. Hi. Sorry for being. Good Hi, evening. Sapnaja. How are you? What is guys? Yes, you are audible now. Great. Sorry for being late. Some tech- I think technical difficulties always happen with us. okay. But we are all so eager to learn from you, Sapnaja. Yeah. Thank you. So, friends, let me introduce you, Sapnaja. So, she basically has been into trading since 2015 onwards. She had been actively doing it. She had been doing it much before that. And she is primarily a YouTuber and also does options for herself. So before we start off, Swapnaja, if you can just introduce us to your world, like how you started the journey. Well, yes. First of all, the way you said that I'm primarily a YouTuber. No, I'm not. Primary, I'm a trader, I'm so and I've sorry. I'm started sorry. and I've started my trading journey in 2007 with no knowledge and huge capital. एंड यस जब शुरू किया था सब टिप्स पे काम करती थी द ब्रोकर यूज टू गिव दोस टिप्स एंड फर्स्ट मेरे साथ एक ट्रेडर्स लक बिगिनर्स लक था एंड आई मेड मनी एंड देन केम 2008 एंड द क्रैश जिसमें आई हैव लॉस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ माय कैपिटल along with the confidence. And then I have realized that no, this market ये tips पे नहीं चलता. You need to know the technical things in that. जब वो टीवी पे देखते थे support and resistance those stuff, then I thought that नहीं ये सीखना चाहिए and then we should try again. And then I started learning from 2008 onwards about technical analysis through books, through some online articles. तब तो YouTube पे इतना कंटेंट था नहीं रिगार्डिंग दिस द वे वी हैव टुडे आई मीन there are many channels and the information is like overflowing about technical analysis, but in those days it was difficult. But the main thing which I've learned all my analysis and all the technicals is through charts and the observation through charts. So this is how my journey has started without mentor. So my learning curve was pretty wide, but yes, I made it. I can say that. Great. Great, So, great. Swapnaja, it's a great journey. From 2007, you started with the. You had a beginner's luck, right? Maybe unfortunately, Yeah. which मेरे पास नहीं था वो. Uh, Okay. नॉट ओनली मी आई थिंक बहुत सारे लोगों के पास होता नहीं है बट यू आर हाँ. फॉर्चुनेट आपके पास था एनीवे Yes. तो आपने जर्नी स्टार्ट किया अभी आप क्या है अभी ये फुल टाइम ट्रेडर है यू आर लाइक व्हाट यू आर I was डूइंग लाइक always a full time trader, though I wasn't successful in those days. But I हाँ was always a full time trader. I was फुल टाइम fighting ट्रेडर my way out. ओके ग्रेट सो आप अभी यू स्टार्टेड विद द फ्यूचर्स और ऑप्शंस और कैसा आपने स्टार्ट किया और उसके बाद आप अभी क्या कर रहे हैं लाइक फ्यूचर्स ऑप्शंस No, और see, व्हाट यू आर directly ट्रेडिंग नाउ when I've directly started with futures because I had a huge capital. I mean, in that time, I've started with 7 lakh rupees. In 2007, I'm talking about. Okay. So, और तब तो margin भी सही मिलता था और मैं actually started my journey with futures only. So, I've lost also pretty good amount in that particular 2008 का fall. But then I see एक book है. It's like Rich Dad and Poor Dad. उसमें एक राइट कोट है that if you want to become really rich, you should make money while sleeping. And I thought option is the only instrument where actually you actually make money while sleeping. So writing option is something I wanted to get into. Although फिर जब मेरा फंड इतना कम हुआ तब मेरे पास इतना फंड नहीं था बट मैं वो जो होता है ना कि नहीं आई वांट टू रीच समवेयर देयर आई नीड टू बिल्ड अ कैपिटल. So I built a capital and somehow मुझे अपना जर्नी ऑप्शन की तरफ राइटिंग आई एम टॉकिंग अबाउट एंड राइटिंग की तरफ लाना था एंड टुडे आई एम सक्सेसफुली डूइंग दैट. ओके तो ये कभी आपने स्टार्ट किया ऑप्शन राइटिंग ऑप्शन राइटिंग फर्स्ट जब हमारी मंथली एक्सपायरीज होती थी आई यूज टू डू इन एट दैट टाइम. बट जब इन फ्रॉम 2016 वीकली ऑप्शंस लॉन्च हुए मेरे ख्याल से मई जून में समथिंग लॉन्च हुए थे वीकली ऑप्शंस.
of Nifty and Bank Nifty indexes, weekly expiries. तो तब से it's like aggressively I started doing option writing. Okay. Okay, wonderful, Swapnija. So, like you said that you started trading in options way back in 2007 and 8, and so for trading you would be needing charts. So, where were you getting the data regarding the charts from during those times? Actually, in those days, जब chart available इतना होता नहीं था, every broker used to charge for a chart. Rather, हर broker charts इतने देता भी नहीं था swiftly. So, तब एक company थी, I forgot name, Iris, it's Spider, I guess, yeah. उनकी सीडी आती थी जो मैं actually stay in Gwalior, so उनकी सीडी वो दिल्ली से भेजते थे, courier करते थे to install that into your laptop or something, whatever computer, और वो 1 साल का अच्छा खासा पेमेंट चार्ज करते थे. उसमें भी काफी सारे उनके स्लॉट्स रहते थे कि 15 डेज का ही इंट्राडे डेटा देंगे, 30 डेज का चाहिए तो और पैसा देना पड़ता था उनको, ऑल काइंड ऑफ स्टफ. सो बट ठीक, जो भी था, जो भी मेरे पास टूल्स अवेलेबल थे, आई स्टार्टेड जस्ट ऑब्जर्विंग द थिंग्स, एंड एक्चुअली दैट मेड अ ग्रेट डिफरेंस. थ्रू ऑब्जर्वेशंस you can learn a lot in stock markets through chart observation. So that is what I've done. Absolutely. Back then it used to be very difficult. Even we used to put the data in Excel, and we used to make our charts and levels. I still remember. And I actually on those days मैं Excel इतना horrible use करती थी, मतलब extensively, not horrible, but the word is extensively, because I need to put that closing price, opening price, manually you need to do all this stuff if you want that data to build up. So yeah, बहुत सारा काम करा है इस पे manual work. जो आज की जनरेशन, जो भी नए traders आ रहे हैं उनके लिए it's like a piece of cake, all the data. Yes. I started my like a chart journey with the AMI broker. There is a software called AMI broker. Yeah, Poland based company's product, I think. यहाँ से हम लोग यूज कर रहे थे वो टाइम पे. एक बार ऐसा भी हो गया कि एक वेबसाइट से मैं bowcopy.com कहाँ से तो मैं डेटा लेता था, बट एक दिन वो डेटा अपडेट होना बंद हो गया. वो भी क्या पेड नहीं था, फ्री में मिलता था वहां से डेटा. वो एनएससी से कुछ तो लेके दे रहा था लगता है. सो दैट टाइम आई आल्सो डूइंग लाइक सेम, वहां से एनएससी से डेटा लेने का और एक्सेल में डाल के वो आस्की फॉर्मेट में कन्वर्ट करके अपलोड करने का. Yeah. I've done all the stuff. Yeah. 2007, 2008. So मेरे ख्याल से अभी के ट्रेडर्स को ये सब पता नहीं होगा. वो भाव कॉपी डाउनलोड करना, एक्सेल में उसको एक्सट्रैक्ट करना एंड ऑल दिस thing, but I've done all the stuff. I'm still doing it. You're still doing it? Okay, great. Yeah, I love doing it. Basically, not bow copy. I just download the data, basic data. Acha, okay. For charting and back testing and all that. So, Swapnija, what's your trading style? So, do you trade based on system? So you have a trading style which you follow. Your system is there, or you do it discretionary? Yeah, I'm a basically discretionary trader. I don't follow that particular system, because when I know that कि market गिरने वाला है, and my system is like कि mainly system क्या करता है, भले ही market गिरे या उठ चढ़े, whatever it is, you just need to follow the system, which I cannot do that. I know कि market गिर रहा है, तो I'm the pure discretionary trader basically. Of course, discretionary में भी systems होते हैं, that I follow my own setups and whatever it is. But yes, I'm a core discretionary option writer, you can say. Excellent. But before we move on, Ed, a request to all the observers here. Whatever we are discussing here is completely for knowledge purpose and not for trading. And if you want your friends also to be benefiting out of this discussion, I would request you, एक बार हमारा जो discussion चल रहा है इसका screenshot लेके you can tag us, Paytm Money and F&O पे चर्चा Momentum Trading, and you can post it in your Twitter. So they know that you are joining and you are there. So your friends can also benefit out of this discussion. Right? So, Peter? Yes, right. Yeah. Swapnija, I have some question for you. Like आपने अभी option trading के बारे में बोला. So आप अभी
आपका एक स्ट्रैटेजी मुझे बता सकता है क्या? आप मे बी इट विल हेल्प आवर like all the audience. How you Yeah, yeah. trade? Means you trade with the hedge based or non-hedge or directional or momentum? How you trade? And what kind of like charts you are observing? And आप कैसा decision लेता है इसके ऊपर? Okay, fine. The basic, if I can say, on this particular platform is like, see, levels, drawing levels on the chart, drawing resistance and supports on the chart. It sounds very basic, but I must tell you, it is way, way, very important. You should know what is the resistance and you should know what is the support. And if you are good enough to draw those levels on the chart, then taking the decision of trading. नाउ अगर मैं आज ही का आपका बैंक निफ्टी का वो दे दूं, वी एक्चुअली एक्सपीरियंस अ मैसिव गैप डाउन, राइट? बैंक निफ्टी नीचे आया एंड टुडे इट मेड अ रेंज ऑफ 36,435 इन अ अपर साइड रेजिस्टेंस एंड 36,250 इन अ लोअर साइड. सो टिल 2 o'clock वो सिर्फ इसी रेंज में ऊपर नीचे कर रहा था. सो यू शुड नो कि वहां पे वो रेजिस्टेंस है 36,435 एंड 36,250. वो रेंज मार्केट खुद बताता है. इफ यू आर सपोज इंट्राडे प्लेयर, तो आज की ये रेंज मार्केट ने खुद ही बनाई थी. यू जस्ट नीड टू प्लॉट दोज. जब भी ये रेंज अपवर्ड या डाउनवर्ड एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रीच होता है, देन यू कैन से कि हाँ अब मूवमेंट स्टार्ट हो गया. जैसे आज का 36,250 का जो उसने नीचे की तरफ सपोर्ट बनाया था, वो उसने बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रीच किया एट 2 o'clock और उसके बाद 200 पॉइंट की 200-250 पॉइंट की नीचे की तरफ मूवमेंट दी. सो व्हाट यू कैन डू, जब भी मार्केट रेंज में है, देन यू कैन मेक स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल, राइट? बट जब मार्केट इंडिकेशन देता है कि उसने एक तरफ का रेंज ब्रेक कर लिया है विद अ स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो आप उसके एक लेग में से बाहर आ सकते हो. एंड दैट्स द सिंपलेस्ट वे ऑफ ट्रेडिंग. यू जस्ट डोंट नीड एनी ग्रीक्स of options or बहुत सारे indicators on the chart. No, nothing. If you learn to draw the support and resistance, that's it, and that's enough to trade. Wow, it's means आप बहुत सिंपल तरीके से भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकता है, आप बोल रहे हैं, राइट? वेरी सिंपल इट इज. मार्केट में अगर ट्रेडिंग करना है तो सिंपल वेज ही काम आते हैं. कॉम्प्लिकेशंस से बहुत ज्यादा इंडिकेटर अगर चार्ट पे लगाते हो तो प्राइस एक्शन से आप दूर हो जाते हो. और जो ट्रेडर प्राइस एक्शन से दूर है और इंडिकेटर के पास है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है. और जो ट्रेडर प्राइस एक्शन के पास ज्यादा है विद फ्यू इंडिकेटर्स ऑन द चार्ट, यस, वो उसका सक्सेस होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. सो आप ये बता रहे हैं कि हम लोग एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया इंटरडे चार्ट के ऊपर, मे बी 3 मिनट्स और 5 मिनट चार्ट, या एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल पे हम लोग कॉल एंड पुट दोनों सेल कर दिया, राइट? एग्जैक्टली. आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज करते हैं या कैंडल लेवल कौन सा यूज करते हैं चार्ट्स के लिए? लाइक आप जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, फॉर दैट व्हिच कैंडल इंटरवल एंड लेवल्स डू यू टेक इंटर फॉर चार्ट? Sorry, your voice is breaking. Okay. Can you just repeat the question? Is it clear now? Yeah, now it is clear. Yes. So you were saying about कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस खींचते हैं, तो आप वो कितने टाइम फ्रेम पे खींचते हैं इन द कैंडल चार्ट, ये पूछा. If you are an intraday player, basically डेली करती हूँ. डेली में 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन स्पॉट चार्ट रोज डेली में ड्रॉ करती हूँ ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम पोस्ट मार्केट. ठीक, उसके बाद जब दिन का वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना होता है, देन आई डेली फॉर इंट्राडे आई यूज 3 मिनट टाइम फ्रेम. और 3 मिनट टाइम फ्रेम फ्यूचर का यूज करते हैं जस्ट बिकॉज कि वॉल्यूम का एक सपोर्ट हमको देखना पड़ता है कि वॉल्यूम के साथ कोई रेंज ब्रेक होती है या नहीं होती है. सो वो 3 मिनट टाइम फ्रेम आई यूज ऑफ फ्यूचर चार्ट एंड 15 मिनट स्पॉट चार्ट फॉर द लेवल्स. दिस इज व्हाट माय सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ वॉल्यूम भी इंपॉर्टेंट है. या अगर कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस वॉल्यूम के बिना ब्रेक होता है तो फिर वो इतना वो सस्टेनेबल नहीं मतलब होता. टेम्पररी ब्रेकआउट वी कैन से, वो वापस उस रेंज में आ सकता है. कैन बी अ फेक ब्रेकआउट आल्सो. सो इसके लिए मेरा एक क्वेश्चन था. तो आप ब्रेकआउट में जब रहेगा तो आपने बताया कैसे ट्रेड करते हैं. तो कमिंग टू अ टॉपिक, जैसे मोमेंटम ट्रेडिंग विद ऑप्शंस है, तो आपके ज्यादा प्राइस मूवमेंट एंड वॉल्यूम मूवमेंट हो रहा है, वो कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं? लाइक अपार्ट फ्रॉम ब्रेकिंग द जोन, लाइक आपने बड़ा कैंडल देखा तो आपने किया, अदर देन दैट आप और के फैक्टर्स देखते हैं? नहीं,
if this is the momentum, अगर मार्केट काफी देर से कंसोलिडेट हो रहा है राइट, और वो एक तरफ ब्रेकआउट दे रहा है, कोई भी अपर लेवल पे या नीचे की तरफ जो भी है, सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, मूवमेंट कब स्टार्ट होगी? व्हाट इज मोमेंटम ट्रेडिंग? कि मूवमेंट यू आर सपोज टू कैच, जैसे ही मार्केट ने किसी स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट देता है विद द वॉल्यूम, देन देयर इज योर मोमेंटम, दैट्स इट, देन यू जस्ट प्लेस योर स्टॉप लॉस। जो भी उस सपोज मार्केट ने आज जैसे डाउनवर्ड ब्रेकआउट दिया ऑन 36,250 का राइट, उसके पहले जस्ट उसने एक स्विंग बनाया था। अगर आपको एसएल प्लेस, ऑफ कोर्स एसएल शुड बी देयर इन द सिस्टम, और अगर एसएल प्लेस करना था तो मैंने जो मेरे अपने ट्रेड लिए 36,300 पे एसएल सेट कर दिया था, 36,300 के इस पे कि दैट्स माय एसएल। जैसे ही उसने ब्रेक किया एंड आई स्टार्टेड डूइंग वन डायरेक्शनल ओनली सीई सेलिंग, दैट्स इट। सो उसके बाद अच्छा खासा वो 200 पॉइंट रिटर्न, दैट्स द मोमेंट आई हैव गॉट इट बेसिकली। सो अगर डायरेक्शन ब्रेक होता है तो आप उसमें भी सेलिंग जाते हैं rather than buying, right? Selling C option और selling P option, not buying the opposite. Yeah. या आप बाय भी कर सकते, सी बेसिकली आई एम अ स्कैल्पर, मैं अगर ऑप्शन बाय करती हूँ तो वो सिर्फ स्कैल्प के पर्पस से करती हूँ, बट अगर बड़े मोमेंटम कैच करने हैं तो मैं फिर ऑप्शन सेल करके बैठती हूँ। When you're saying that you are going to sell the options, what are the factors which makes you decide? So do you do it like अभी लगता है दिन खत्म होने वाला है, दिन के शुरुआत में, how do you choose your strikes basically and other factors before deciding? See, जो मेरे डिसीजन फैक्टर्स होते हैं कि मार्केट शुरू हो गया, फर्स्ट अगर मैं फिर से आज ही का एग्जांपल दूं, मार्केट पहले नीचे आ गया था बिकॉज वी विटनेस गैप डाउन, सो उसको नीचे आने दो और एक रेंज बना दे दो, नीचे आके वो थोड़ा सा रिट्रेस होगा, फिर ऊपर जाएगा, तो नीचे में सपोर्ट बनाएगा, ऊपर में रेजिस्टेंस बनाएगा। अगर वो फिर से वो जो उसने जस्ट एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको दिया है वो ब्रेक करता है, वेल एंड गुड, नहीं करता है तो वहां पे सबसे पहले मैं स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल जो भी है ओपन कर देती हूँ, और जब तक वो वेट ब्रेक नहीं करता है तब तक क्या होता है, ऑप्शंस को डीके का फायदा मिलता है। ऑल्दो आज ऑप्शन के प्रीमियम्स इतना बहुत ज्यादा डीके हुए नहीं, बट नॉर्मली दिस इज द ऑप्शंस सेलर्स का टेंडेंसी, रादर माय टेंडेंसी इज ऑल अबाउट, अगर मार्केट रेंज में हो तो स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल ओपन करके रहो, जितनी देर रेंज में रहेगा दोनों तरफ के प्रीमियम्स डीके होते रहेंगे, जिस वक्त वो किसी भी और ब्रेकआउट देने लगे उस तरफ का लेग सिर्फ जो भी इसमें है, अगर लॉस में है तो लॉस में बुक कर दो, प्रॉफिट में तो प्रॉफिट में बुक कर दो, बट एक ही साइड फिर रहो जब मोमेंटम शुरू हो रहा है, एंड दैट्स द ओनली इंडिकेशन मोमेंटम शुरू होने का कि मार्केट आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल से आपका रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक करेगा विद द वॉल्यूम। Right. That's a very nice strategy to do. And do you trail it down? Trailing it down means, let's say for example, yes. बैंक निफ्टी 200 पॉइंट नीचे चला गया, आपने पुट राइट किया था, सॉरी कॉल राइट किया था, तो बैंक निफ्टी 200 पॉइंट नीचे आया, सो विल यू स्क्वायर दैट ऑफ एंड ब्रिंग इट डाउन टू द नेक्स्ट वन नीचे का, या यू विल होल्ड ऑन टू द वन? इट डिपेंड्स अपॉन कितना प्रीमियम रहता है, जैसे आज फ्राइडे के दिन तो प्रीमियम अच्छा खासा रहता है, देन यू डोंट एक्चुअली टू रोल इट डाउन, यू कैन जस्ट ऐड योर क्वांटिटी। सो बेसिकली व्हाट आई डू, आई ऑलवेज डू पिरामिडिंग, तो जैसे जैसे अगर वो नीचे आया उसने फिर से एक बनाया, थोड़ा सा रिट्रेस हो गया, फिर वो जो लो उसने क्रिएट किया है वो फिर से उसने ब्रीच किया, देन आई द क्वांटिटी। सो आई एक्चुअली बिलीव इन पिरामिडिंग द थिंग्स, पिरामिडिंग माय पोजीशन साइजेस। सो आई स्टार्ट विद व्हाटएवर द फ्यू फर्स्ट लेग जो मेरा होता है 1200 क्वांटिटी सपोज, या 3000 क्वांटिटी, देन आई कीप ऑन एडिंग दोस क्वांटिटीज ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। सो दिस इज how I trade the momentum. Right. And if the market is in range, better open straddle and strangle. तो वो उस ऑप्शन सेलर बेसिकली दोनों मार्केट में कमा सकता है, साइडवेज मार्केट में भी कमा सकता है और मोमेंटम मार्केट में भी कमा सकता है। Yeah, Swapna, I got one question from one of the audience. I would like to ask, saying like, for example, the Bank Nifty is trading at 35,000 rupees. He's giving it just an example, 35,000 rupees. And the support at, for example, 35,500 and resistance at 35,500 and support at 34,500. Okay.
Now, there is a three scenarios are there. One scenario is Bank Nifty at around 35,000. That time, what kind of strategy we have to do? Immediately, should I do the straddle or not? If the Bank Nifty come near, if say 35,500, then what should do? And if the Bank Nifty at support level around 34,500, then what kind of strategy should we do? These are three questions with the Yeah. three scenarios. Right. The first scenario is that open first if it is at 35,000, right? It's in the middle, open straddle or strangle, right? Now, Yeah. if it is going towards your support, but you should need to see if it is going towards your support, you should need to see whether it is breaking or not. If it is going towards your support, then just start writing calls. And again, if it is taking U-turn from the support, start writing puts, but with very few quantities, not with your full capital. Just deploy kind of 20% to first on the first stage, right? See to it what it is doing. Now suppose you have first written the calls and then the puts, so you have made a strangle, right? Then if it is hovering in that particular range from up and down, fine, you will get benefited out of decaying, right? Now if it is breaking your whatever support 35,500 का support या नीचे में जो भी था 34,500 का support या resistance whatever, जो भी आपने ऊपर suppose उसने breakout दिया है, तो calls को quit करो, calls की वहीं पे leg काटो and सिर्फ put side में रहो. That's it. That's the simple thing you can do. And if you need to choose the option strikes, that which should we do, which should we strike, which should write, always choose strikes which are trading below VWAP on 3-minute time frame. This is what I'm telling you about intraday. Choose those strikes to write which are trading below VWAP on 3-minute time frame. Because for options, VWAP is like indicator. For option buyers, VWAP के ऊपर के strikes are good to buy, and for option writers, VWAP के नीचे के strikes are good to sell. वाओ सुपर. सो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हम लोग देख लिया, उसमें हम लोग सेल करने का टाइम पे भी वी शुड नॉट गो विद द सेम स्ट्राइक प्राइस. वी हैव टू चेक द प्राइस ऑफ द particular option strike is below If you want to make VWAP or strangle, not. yes, if you want to make strangle, then better choose those option strikes which are trading below VWAP, right? But for straddle, if you ask me, choose the straddle which the premium of which is very nearby. Suppose जैसे आज का 36,300 का था, 36,200 300 का प्रीमियम था, 400 पे जब आया था तब मैंने straddle open किया था 36,400 पे. So see to it that if you want to open the straddle, the premium of both the legs, they are kind of close to each other. There shouldn't be any massive gap so that you can handle it very well. But if you choose the straddle of suppose 36,300 जिसका CE का 200 रुपए चल रहा है और PE का 400 रुपए चल रहा है, then this will give you dent basically. Right. Okay, so you're saying that call and put premiums for should be nearby. Close to each other, अगर एक 400 चल रहा है तो दूसरा 403 या 410 तक चलेगा, 425 तक चलेगा. But see to it that they are as close as possible. Okay. So audience, so you can send us the question like you have for Sapnija, we can ask it. So I also got one question from one of our audience. So since we discussed about breakout, so here's the question like how to identify a false breakout. So you said that the breakout candle should be very big and like with volume. So apart from that, like what are the things that a trader can check to identify if a false breakout has happened or not? See, I'll give you the very simple example again of today, so traders can actually identify it. Now, as I said, today Bank Nifty ने 36,250 का एक support बनाया था, which it broke at 2 o'clock with a very strong candle on 3 minute if they can check, okay, with the volume, right? Now, ठीक है, this can be a false breakout also. What I need to do to tight my risk, I just need to place an SL. Now, for that particular breakout candle, I will place SL around 36,300. अगर वो उल्टा होके 36,300 को फिर से टच करता तो मेरा SL हिट हो जाता and I will be out of that particular trade of selling the calls. But that is fine. You need to take SLs also at times, right? But you should know where to place your SL.
That's the main thing people actually don't know. You should always place your SL above the swing highs or below the swing lows. जो भी आज का जो स्विंग हाई था इस पर्टिकुलर कैंडल से पहले जो उसने एक स्विंग हाई बनाया था 1354 का कैंडल था 1354 का कैंडल था जिसका हाई था अराउंड 36,299 समथिंग. सो योर एसएल शुड बी 36,300 एंड दैट इज द प्रॉपर एसएल. अगर वो फॉल्स ब्रेकआउट होता, यूटर्न लेके हिट करता, फाइन, मेरा एसएल देके मैं बाहर आ जाती, पर एटलीस्ट और उससे ज्यादा लॉस तो मैं नहीं बेयर करती, राइट? So false breakout होते हैं, but you should actually trade every breakout with the proper SL. पर जब breakout layout होते हैं, in that time you get 1:3 reward, 1:4 का ratio. So Right. that's absolutely all right to take SL at times also. The one point I liked, Swapnaja, here, you have to trade every breakout. It may be false or not, we don't know, right? So Yeah. every breakout you trade with the stop loss or go with your rule. You have to follow your rules. That is very important. That is the message you are giving to our audience. And the thing is, Yes. if there is a fail breakout, right, and if you reverse your position, now suppose अगर मेरा ये 36,300 मेरा टच हो जाता, ओके, देर आर वेरी चांसेस कि अगर आप कोई भी जो भी सुन रहे हैं, जस्ट ओपन द चार्ट एंड जस्ट सी टू इट दैट कौन से फेल ब्रेकआउट हुए हैं. जस्ट रिवर्स योर पोजीशन एट दोस पर्टिकुलर, वो स्विंग जो हमने लो एसएल मार्क किया है उसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग दे जाती है, जस्ट रिवर्स योर पोजीशन. इस अगर आज मेरा वहां का एसएल हिट हो जाता, व्हाट आई वुड हैव डन, 36,300 का एसएल हिट हो जाता और कोई भी कैंडल मुझे 36,300 के ऊपर क्लोजिंग देती, then I would have actually short put at that time. And you see to it, जब भी फेल ब्रेकआउट होते हैं मार्केट दूसरी तरफ बहुत अच्छा मोमेंटम दे जाता है. सो दैट्स ऑल्सो अ साइन कि वो अब रिवर्स अच्छा करेगा. वाई? अगर आप थोड़ा सा साइकोलॉजी समझो इसमें द लॉजिक समझो कि ब्रेकआउट फेल होते हैं मतलब क्यों होते हैं. जैसे आज का है, आज का सेलर्स काफी हावी थे इसलिए ब्रेकआउट सक्सेसफुल रहा. नहीं होते हावी, बायर्स आ जाते तो उतना ही फोर्स से उस सेलर को फाइट करना पड़ता बायर्स को, और फिर वो और ज्यादा ऊपर ले जाते क्योंकि सेलर्स एग्जॉस्ट हो जाए, और तभी ब्रेकआउट्स फेल होते हैं. सो आई वुड हैव देन शॉर्टेड आल्सो PE at that time अगर ये वाला ब्रेकआउट फेल हो जाता, with the proper SL again into the system. But trade it, take a trade. SL से डर. Right. So there was a question related to this, Swapnaja. There maybe is V-shaped recovery also, right? As you mentioned. So Yeah. that time, how you handle that speed What is and everything, right? recovery? What is V-shaped recovery? Those are the failed breakouts only. अगर आज का ये ब्रेकआउट फेल हो जाता मतलब ही वी शेप रिकवरी आती ऊपर की तरफ, कहीं ना कहीं आज के हाई को टच कर जाता मार्केट, राइट? तो फर्स्ट क्या होता, हमारा पी का एसएल हिट हो जाता इन वी शेप रिकवरी, बट हम पी का नहीं, सी का एसएल हिट हो जाता क्योंकि वो यू टर्न ले रहा था, और फिर हमने फिर पी शॉर्ट करने थे क्योंकि उसने उस पर्टिकुलर एसएल के ऊपर क्लोजिंग दी थी. सो इट इज शोइंग कि नहीं, ये नीचे जाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है. अगेन टेक अ बेट. सिर्फ जब भी आप रिस्क ले रहे हो मार्केट में वो कैलकुलेटेड लेना, जिससे कि बहुत ज्यादा आपका कैपिटल डेंट नहीं हो जाए. इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि ऑल योर कैपिटल एक वन गो में मत करो, पिरामिडिंग करते चलो. और सपोज यूटर्न देके जाता मार्केट में, पीई शॉर्ट करती, और उसके जो उसने एक रेजिस्टेंस अगेन बनाया था 36,435 का, राइट, एक रेजिस्टेंस उसके ऊपर फिर से अगर वो क्लोजिंग देता तो मैं मेरी पी साइड और पोजीशन ऐड करती. सो दिस इज वन शुड डिप्लॉय द कैपिटल ऑल्सो. इट्स नॉट कि आपके पास जितना भी कैपिटल है एक ट्रेड में लगा दो. यू शुड चेक कि कितना ट्रेड वर्क हो रहा है, और अगर वर्क हो रहा है तो इंक्रीज करते जाओ, पिरामिडिंग करते जाओ rather than averaging your position. Pyramiding is the best thing you can do in the market. Super. Great. I think so I am like looking at sometimes, like you spoke about directional indicators as well. So see, any specific one? I use very few indicators basically. First I use RSI. No, mostly people use RSI with the 14 value, right? That's the by default value of RSI. But I precisely use RSI with 3 particular value, only 3. And for me,
this is the general conception that above 18 is above 80 is overbought and below 20 is oversold. But with RSI 3, for me, above 80 is like there is a power, and below 20, it's a super power कि वो अब गिरेगा. So that those the indicator I use. जो मैं नॉर्मल इसके बिल्कुल उल्टे चलते हैं मेरे इंडिकेटर्स. एंड आई यूज बंच ऑफ EMAs. देर आर 3 EMAs मोस्टली आई यूज. 1320 EMA. दो दैट आई ऑलवेज से दैट 13 EMA इज अ मैजिकल. जब भी मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा तो एक रिट्रेसमेंट लेता है, राइट? सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं जाता या नीचे नीचे नहीं आता है. सो दैट रिट्रेसमेंट इन अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इज ऑलवेज अप टू 13 EMA. तो 13 and 20 EMA इज द पॉकेट जिससे वो फिर से एक बाउंस लेता है अगर अप ट्रेंड में है, या फिर से रिजेक्शन लेगा 13-20 से अगर वो डाउन ट्रेंड में है. एंड द 100 EMA विच इज एक्ट एज अ ब्यूटिफुल सपोर्ट और अ रेजिस्टेंस जिस तरह से मार्केट है. एट एंड दीज बेसिकली इंडिकेटर सेम आई यूज फॉर एवरी टाइम फ्रेम फ्रॉम 3 minutes to 1 month. So this for me, this is the global indicator for me. 13, 20 and 100 EMAs and RSI 3. ग्रेट. सो या सो आपने इसके आप फुल टाइम ट्रेडर है, उसके साथ अपने यूट्यूब चैनल भी आपने चालू किया एंड एजुकेशन लोगों को आप फ्री में एजुकेट भी कर रहे हैं, राइट? सो जस्ट आई वांट टू नो अबाउट दिस. आपने यूट्यूब चैनल कभी चालू किया एंड व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड दिस? कैन यू ब्रीफ समथिंग अबाउट दैट? बेसिकली जब मैंने 2020 में फेब 2020 में यूट्यूब चैनल आई स्टार्टेड, एंड एट दैट टाइम देयर इज अ वन सेइंग दैट कंटेंट इज किंग, right? And I had a content, I had the super experience from whatever my failures and success. Then I had a very genuine content with me. And स्पेशली जब यूट्यूब स्टार्ट हुआ था, यूट्यूब हुआ था, और वहाँ पे अगर आप इंडिया, आई एम टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, सारे मेल ट्रेडर्स थे और एक भी फीमेल ट्रेडर नहीं थी. देयर वर फीमेल फंडामेंटल एनालिस्ट थी, पर कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट या कोई भी चैनल ऐसा नहीं था फीमेल का जो ट्रेडर हो. एंड आई थॉट कि नहीं, ये एक स्पेस है, मेरे पास कंटेंट भी है, देन आई शुड स्टार्ट एटलीस्ट जो मैं यूज कर रही हूँ स्ट्रैटेजी उसको मैं एज अ कंटेंट, क्योंकि जेन्युइन था. और मैंने यूट्यूब पे फिर मेरी स्ट्रैटेजी का रिकॉर्डेड वीडियो करना शुरू किया, बिकॉज वहाँ तब तक बहुत सारे लोगों के चैनल भी ओपन हुए थे, बट द प्रॉब्लम वॉज सारे मेल ट्रेडर्स थे, सारे के सारे इन इंडिया. एक भी फीमेल ट्रेडर का वहाँ पे एक भी चैनल नहीं था. So I thought this is a good space right now to come with the genuine content. So I started YouTube channel, and by God's grace उसको बहुत अच्छा एक वो मिला, सक्सेस मिली मुझे. YouTube ने एज अ क्रिएटिव कंटेंट करके वो भी किया, अवार्ड भी दिया. सो दैट्स इट. दिस इज हाउ माय YouTube जर्नी स्टार्टेड, एंड इट्स स्टिल गोइंग ऑन. डेली में रात को 9 o'clock नेक्स्ट डे एनालिसिस के लिए आती हूँ लाइव ऑन माय YouTube चैनल. एंड देयर आर वेरियस एजुकेशनल वीडियोस जो मैंने यूजर्स के लिए बनाए हैं. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. आपका तो ये टाइम पे मैं मेरा एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ. ये बहुत सारे लोग बोलता है कि फुल टाइम ट्रेडिंग बहुत स्ट्रेसफुल होता है, इसके बीच में भी आप इतना वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, तो आपको क्या लगता है फुल टाइम ट्रेडिंग इज वेरी स्ट्रेसफुल, और हाउ यू डिफाइन दिस? If you're making losses, then full-time trading is stressful. And if you're making Okay. profit, then I That's the best answer. So it's up to your output basically. For me, I hate holidays. I don't like Saturdays, Sundays, because I love Monday कब मार्केट शुरू हो जाएगा, and especially जो अभी लास्ट वीक गया जो थर्सडे से हमको हॉलीडे था मार्केट में, it was just boring. स्वप्ना जी अपना तो उल्टा होता है. फॉर मी एक्चुअली अगर मार्केट चालू है और मैं मार्केट में नहीं हूँ, तो फॉर दैट थिंग एक्चुअली इज अ स्ट्रगल फॉर मी. यू कैन से आई एम एडिक्टिव, यस आई डू एग्री, बट आई से दैट दिस इज द पैशन. True. Yeah, right. Swapna ji, this is my last question. Maybe we are right now is 6:50, so I will ask you the last question. So, as a full-time trader, so how much return you expect per month or per year from your trading? And second one is, how many
काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज यू रन, मे बी ऐसा नहीं कि हम लोग एक ही एक स्ट्रेटजी किया, अभी आपने बताया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर मैं ऑप्शन सेल कर रहा हूँ, सो सम पीपल आर यूजिंग मल्टीपल काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज, राइट? तो एक बास्केट ऑफ स्ट्रेटजीज यूज करते हैं एज ए पोर्टफोलियो स्ट्रेटजीज. सो व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज यू यूज, हाउ मेनी स्ट्रेटजीज यू यूज, and how much return you expect as a full-time trader, and what is the message for any new audience or any audience who want to become a full-time trader? Okay. See, first of all, आपकी expectation अगर कम हो, because again, what I always say to my subscribers and my webinar participants is like 1% a week is a ग्रेट रिटर्न. सो 1% अगर वीक आप वो कर रहे हो, एम कर रहे हो, तो इट्स लाइक 4% अ मंथ होता है. और अगर आप विदाउट बीइंग ग्रीडी अगर 1% वन अचीव कर रहे हो, एंड ट्रस्ट मी, द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इट विल जनरेट टू इन योर ट्रेडिंग स्टाइल, एंड इट्स मैसिव. एंड दिस इज आई एम जस्ट टेलिंग एज अ बेसिक की 1% बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट होता है मंथली, बट हमारी एक्सपेक्टेशन 1% अ वीक की होनी चाहिए, एंड 4% अ मंथ की होनी चाहिए. एंड एंड अगेन वो होता है कि ऑन एन एवरेज आप कितना निकाल लेते हो. एज अ फुल टाइम ट्रेडर विथ वॉट एवर एक्सपीरियंस आई हैव, विद द वॉट एवर कैपिटल आई हैव, मैं बहुत उससे ज्यादा मंथली रिटर्न ले लेती हूँ. बट एज यू सेड कि अगर न्यू ट्रेडर्स जो भी है यहाँ पे जो सुन रहे हैं, एक 1% अ मंथ इतना ही आप शेयर मार्केट से पहले एक्सपेक्ट करके चलो, और नॉट 1% अ मंथ, 1% अ वीक, इतना ही शेयर मार्केट से एक्सपेक्ट करो. बिल्कुल ये ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे आप करोड़ों ऐसे ही कमा दोगे बिना किसी इसके. दिस इज नॉट अ प्लेस की गेट क्विक रिच थिंग. यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है. अगर आप लॉस के लगातार आपके पास लॉस हिट हो रहा है, तो एसएल हिट हो रहा है, तो सो जस्ट गो स्लो, प्रॉपर नॉलेज के साथ. एंड एज यू आस्क मी कि कितने स्ट्रेटजीज यूज करते हो, ट्रस्ट मी, अगर आपको एक दो भी स्ट्रेटजीज में आप, if you are master in those strategies na, it's enough to earn money from share market, but you need to be master. And for me, being master, it takes 3 months to master any strategy, but in that particular 3 months you need to just stick to one strategy with proper risk to reward ratio, and then only you actually master that strategy. Problem with today's trader is like they want to know new strategy every day they want to know, and that's the thing कि बहुत ज़्यादा उनके पास इंफॉर्मेशन है, इसलिए वो बहुत सारे आज के ट्रेडर्स कंफ्यूज रहते हैं कि हम इनकी स्ट्रैटेजी करें, ये स्ट्रैटेजी करें या वो स्ट्रैटेजी करें. सो आई वुड से कि बस एक स्ट्रैटेजी लो, मास्टर इट. इट टेक्स टाइम. शेयर मार्केट में अगर आप नए हो तो इट विल मिनिमम टेक 2 years, लिटरली मिनिमम टेक 2 years आपको आपका किस तरह से आप ट्रेडर हो वो समझने के लिए. It's not, trading is very different person to person, because trading needs lot of temperament, and temperament person to person vary होता है. So what kind of trader you are, ये समझने के लिए 1 साल लग जाता है कि किस तरह से आप कितना रिस्क ले सकते हो. नाउ एज आई सेड कि मैं स्कैल्पिंग भी करती हूँ, तो स्कैल्पिंग से मेरा काफ़ी सारा फंड जनरेट होता है कि उस अकाउंट में डेली का मेरा 5% 7% वाला वो जनरेट होता है. ऑफकोर्स स्कैल्पिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे आप आपका वो स्केल नहीं कर पाते हो, यू नो, आपका अकाउंट साइज स्केल कभी नहीं कर पाओगे. अकाउंट साइज को स्केल करने के लिए आपका ऑप्शन राइटिंग में जाना ही पड़ेगा. बट यस, एक साइड वाला एक हसल चलता रहता है. जब मार्केट बोरिंग होता है तो छोटे छोटे स्कैल्प्स मिलते रहते हैं, बट जरूरी नहीं कि स्कैल्पिंग हर ट्रेडर के लिए हो. इट टेक्स लॉट ऑफ पेशेंस, इट टेक्स लाइक लॉट ऑफ डिसिप्लिन टू बी अ स्कैल्पर ऑल्सो. सो फर्स्ट आपने आपको समझना पड़ेगा ट्रेडर के लिए कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर यू आर, वो समझो. सिर्फ लोग ये कर रहे हैं और सिर्फ पैसा कमा रहे हैं ऐसा अगर आपको लग रहा है तो वो बहुत गलत है. एंड इट्स अ वेरी इंडिविजुअल थिंग बीइंग ट्रेडर. जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर हमारे सबके घर में दाल बनती है पर हर एक की रेसिपी अलग है दाल बनाने की, वैसे ही ट्रेडिंग का है. हर कोई ट्रेडर हो सकता है पर हर एक का अपना एक वो है, क्या बोलती है, स्टाइल होता है. हर एक का एक रिस्क लेने का तरीका होता है ट्रेडर का. तो इसलिए किसी को एग्जैक्ट कॉपी करना कोई मतलब नहीं है. यू शुड नो योरसेल्फ फर्स्ट कि आप व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर यू आर. एक बार वो समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है. Very nice. That's nice. So, thank you for your words. Any last advice you think you would like to give to your audience
other Yes, than just the one which you said? yeah, first try to, कुछ book पढ़ना या कुछ? yeah, that's the only advice I could say. Just try to know what kind of a trader you are. Yes, there are a lot of webinars are going on and सब चलता है, but there is no magic wand. कोई भी webinar से कोई trader नहीं बन पाता है. You just learn the concept of the other trader, right? But you need to join your own dots ultimately. So join your own dots. अपना खुद का एक स्टाइल बनाओ with of course हर एक से नॉलेज लेना अलग बात है, but again as I said कि अपनी रेसिपी खुद बनाओ ट्रेडिंग की and follow that thoroughly with proper risk to reward. प्रॉपर रिस्क, क्योंकि कैपिटल बचा रहना मार्केट में बहुत ज्यादा जरूरी है. सर सलामत तो पगड़ी हजार, पर कैपिटल ही नहीं रहेगा तो सिर्फ नॉलेज का कुछ नहीं कर सकते. वो नॉलेज से कुछ पैसा नहीं बनना है. So that's it. Thank you, Swapnaja, for the lovely way you explained us and you helped us with your strategies. And it was a lovely discussion. We really enjoyed it. Thank you. Glad. There was a bit technical difficulties. But it was a wonderful session, Swapnaja. Thank you so much. Thank you. So it was a wonderful session. I enjoyed a lot. ये सेशन ऐसा स्टार्ट हो गई, पहले तो बोरिंग में स्टार्ट हो गया, आप भी लेट हो गया, ग्लिचेस वगैरह, देन मोमेंटम स्टार्ट हो गया. That is our topic, momentum trading, and it was like a lot of momentum, and it is inspiring, very inspiring actually. मुझे बहुत अच्छा लगा, and I hope all the audience also liked your today's session. Yeah, thank you very much. Thank you guys. Thank you. Thank you everyone, and you all lovely audience. Thank you very much. Be in touch with us. Follow us, and definitely we'll get market updates and everything. And see you in our next week's Tifino Pe Charcha. Thank you, Swapnaja, once again for your time. Thank you, Peter, Manas, Harsh, for hosting this lovely show. Thank you. Thank you all. Thank you, Swapnaja, once again. Thank you, everyone. Have a great weekend. Have a great weekend, everyone. Thank you.